Can anyone tell me about the conducting system of heart? Can anyone tell me or explain me the conducting system of heart if you remember? कि मैं ही बोलूं, तुम लोग सुनेंगे? सुनाई दे रहा है? हेलो चिल्ड्रन, कैन यू हियर मी? Abhishek Mudliar, can you hear me? Abhishek Mudliar. Aniket, can you hear me? Arkam, can you hear me? Arkam Chaudhary. Aryan Dalvi, can you hear me? Girija Teli, can you hear me? Yes, ma'am. Thank you, child. Mute yourself. Bhakti Patade, can you hear me? Yes, ma'am. Thank you. Mute yourself. Janvi Tiwari, can you hear me? Yes, ma'am. Thanks. Now, जिसको भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ खुद से म्यूट हो जाना, ठीक है? जय कांद्रे, जय पवार, कुणाल शिंदे, नजरीन, निखिल दांगे, नीतीश राय. Nitish Rai, mute yourself. Yes, ma'am. Riya Rawat, mute yourself. Rosie, Rupinder, Sakshi Rathod, Yes, ma'am. Samiksha Salunke, Sana Mansoori, Shirley D'Souza, Shreyas Bhalekar, Shubham Jadhav, Shubham Dalvi, Yes, ma'am. Nikhil Dange. Shweta Sawan, Yes, ma'am. श्वेता जाधव, सोहम शिंदे. म्यूट करो श्वेता जाधव खुद को. जो बच्चे खुद से म्यूट नहीं हो रहे, मतलब वो अटेंशन नहीं दे रहे, तो मैं म्यूट करूंगी. फिर आंसर नहीं पूछ के ये बोलना मत. शर्ली डुजूजा, म्यूट योरसेल्फ. सुमित मोरे, सुरभि संजय, Yes, ma'am. म्यूट योरसेल्फ चाइल्ड. उदय, वैभव मिश्रा, यश पवार. Okay, now I am telling the answer. One conducting system of heart. उसके बाद तुम में से कोई एक बोलेगा. Children, the conducting system of heart. सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? Human heart is myogenic in nature. That is, it has the ability to generate its own waves of contraction. It shows the presence of specialized cardiac muscle. Strips of cardiac muscle called as what? Nodal tissue, and it is distributed in the heart. The conducting system of heart comprises of SA node, sinoatrial node, AV node, atrioventricular node, bundle of His and Purkinje fibers. SA node, it lies at the base of opening of the superior vena cava. It has the ability to generate the waves of contraction, due to which both the atrium undergoes systole simultaneously. The waves of contraction from SA node is passed to AV node. AV node lies in the right atrial wall near the base of interatrial septum. AV node lies in the right atrial wall near the base of interatrial septum. It acts as a pace setter. The waves of contraction from the AV node is passed on to the
lies in the interventricular septum and it branches out as right and left branch. From the bundle of his arises the Purkinje fibers which lies in the walls of ventricle. When the waves of contraction passes through the bundle of his and the Purkinje fibers, the ventricles undergo systole simultaneously. कौन बोलेगा ये आंसर? Who can tell this answer now? कोई नहीं, ठीक है. Cardiac cycle. Children, the events associated in the heartbeat is known as cardiac cycle. हमारा एक cardiac cycle कितने सेकंड्स का रहता है? 0.8 सेकंड. Okay, the cardiac cycle comprises of a systole and a diastole. इसमें तीन फेज है, auricular systole या atrial systole, ventricular systole या तो joint diastole. ओके, एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल में हम क्या बोल रहे हैं? व्हेन द SA node generates the waves of contraction, when SA node generates the waves of contraction, when SA node generates the waves of contraction, both the atrium undergoes systole. Deoxygenated blood from the right atrium enters into the right ventricle through atrioventricular aperture, which is guarded by the tricuspid valve. The oxygenated blood from the left atrium enters into the left ventricle through left atrioventricular aperture, which is guarded by bicuspid valve. Ventricular and atrial systole कितने सेकंड्स का है? 0.1 सेकंड. एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड्स का है? 0.1 सेकंड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में the waves of contraction is received by AV node and passed through the bundle of his and Purkinje fibers. Both the ventricles undergo contraction. So, deoxygenated blood from the right ventricle is carried by the pulmonary artery towards the lungs for the process of oxygenation. Oxygenated blood from the left ventricle is carried by systemic aorta and supplied to different parts of the body. Now comes the joint ventricular systole कितने सेकंड्स का है? 0.4 सेकंड. Joint diastole, ventricular systole कितने सेकंड का है? 0.3 सेकंड. Joint diastole 0.4 सेकंड्स का है. When all the chambers of the heart are in diastole, सारे चेंबर्स जो है हार्ट के वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है. उस टाइम पे राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from superior vena cava, inferior vena cava and the coronary sinus. Left atrium receives blood from the pulmonary vein. I hope इतना याद आया है, अगर पढ़ा रहेगा तो. अब ये ना बच्चे लोग, अगला टॉपिक कौन सा है? ब्लड वेसल्स का. बच्चों की जो वेसल्स वर्ड है उसके लिए बायोलॉजिकल टर्म है क्या? वैसो. ओके, बायोलॉजिकल टर्म है वैसो. और ब्लड वेसल्स की पढ़ाई और एक वर्ड है इसके लिए, एंजियो. एक मिनट. एंजियो, ब्लड वेसल्स के लिए वर्ड क्या है? एंजियो. तो ब्लड वेसल की पढ़ाई को क्या बोला जाएगा? एंजियोलॉजी. एंजियो वर्ड स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल्स. ओके, एंजियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंजियोलॉजी. अभी हमारे बॉडी में
मेजरली 3 टाइप्स के वेसल्स है. वी कैन बेसिकली क्लासिफाई द ब्लड वेसल्स इनटू 3: आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. Okay, we can classify the blood vessels into 3: artery, veins and capillary. तो पहला आर्टरी और वेन. आर्टरी जो है बच्चे लोग, आर्टरी जो है इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी का सारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. एक्सेप्ट व्हाट? पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. वेन, वेन ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड किधर लेके जाता है? हार्ट की तरफ. एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. बॉडी के सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट व्हाट? पल्मोनरी वेन. ओके. आर्टरी इट इज डीपली सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी. वेन इट इज सुपरफिशियल इन पोजिशन. आर्टरी डीपली सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, वेन सुपरफिशियल इन पोजिशन. आर्टरी में द ब्लड फ्लोज विथ अ ग्रेट प्रेशर एंड एट अ हाई स्पीड. आर्टरी में द ब्लड फ्लोज विथ अ ग्रेट प्रेशर एंड एट अ हाई स्पीड. वेन में द ब्लड फ्लोज विथ कंपैरेटिवली लेस प्रेशर एंड लेस स्पीड. आर्टरी में बच्चे लोग वैल्व्स एब्सेंट है. क्यों है वैल्व्स एब्सेंट? सो एज टू अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड अंडर सेम प्रेशर. देयर शुड नॉट बी इंटरप्शन इन द ब्लड प्रेशर. इसके लिए आर्टरी का वेन क्या है? वैल्व क्या है? एब्सेंट है. वेन में वैल्व क्या है? प्रेजेंट है. वेन में वैल्व्स आर प्रेजेंट. ये चारों पॉइंट एक बार अच्छे से रीड कर लो. Ma'am, superficial means Sorry, Surbi, I am not. superficial means Superficial means lies close to skin. एकदम अंदर नहीं है बॉडी के, एकदम ऊपर ऊपर है. Can anyone tell me the point of difference between artery and vein? किसी को याद है? मैम कहना. Yes. Ma'am, can I? Yeah. First the boy. There are हाँ बोलो बेटा, कोई बोलो. there are 3 types of blood vessels: I asked artery, you the vein, and capillary. difference between artery and vein. Okay, ma'am. Artery is a type of blood vessels which carries oxygenated blood away from the heart to different parts of a body except pulmonary artery. Whereas vein is also a type of blood vessels which carries deoxygenated blood from different parts of the body towards the heart except pulmonary vein. Artery is deeply situated inside the body and vein is superficial in position. In artery, the blood flows with a great pressure and at high speed. In vein, the blood flows with comparatively less pressure and less speed. In artery, valves are absent. In vein, valves are present. Very nice. Who was that boy who wanted to say the answer? Ma'am. Yes. Arteries, these are the type of blood vessels which carries oxygenated blood from the heart to the different parts of the body except pulmonary artery. Veins are the type of blood vessels which carries deoxygenated blood from different parts of the body towards heart. Arteries Towards the heart. Towards heart except pulmonary veins. Arteries, the blood flows with a great pressure and a high speed, whereas in veins the blood flows with comparatively less speed and less pressure. In arteries, the valves are absent. In veins, valves are present. The arteries, they are situated deeply inside the body, whereas the veins are situated superficially in the body. Very good, sir. चलो अभी जो डायग्राम तुमको दिख रहा है, it is about the histology. ये डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? Histology of blood vessels. CS of artery, CS of vein,
अब देखो टीएस ऑफ आर्टरी और टीएस ऑफ वेन को क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, दोनों डायग्राम को देख के बताओ मुझे तुमको क्या फर्क दिखाई दे रहा है। व्हाट डिफरेंस इज देयर बिटवीन द टू? अच्छे से देखो। In case of artery, lumen is small, while in case of vein, lumen is big, ma'am. अच्छा, तो टीएस ऑफ आर्टरी का ल्यूमेन क्या है? नैरो। टीएस ऑफ आर्टरी द ल्यूमेन इज नैरो एंड टीएस ऑफ वेन द ल्यूमेन इज वाइड। ओके, सेकेंड और कुछ दिख रहा है? Ma'am, arteries are thick and veins are thin. हाँ, आर्टरी का बीच का वॉल देखो बहुत जाड़ा है, जबकि वेन का बीच का वॉल पतला है। अगर कॉलेज चालू होता ना बच्चे लोग, ये तुमको प्रैक्टिकल में होता, तुमको स्लाइड देख के बताना होता है कि कौन सा आर्टरी का है और कौन सा वेन का है। तो हम जब प्रैक्टिकल में स्लाइड देखते हैं आर्टरी और वेन का, तो कैसे पहचानेंगे? ये 2 पॉइंट पे पहचानते हैं। ल्यूमेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है और वेन का ल्यूमेन क्या है? वाइड। अभी आर्टरी और वेन में दोनों में सेम टाइप के लेयर्स हैं। ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर्स होते हैं। वेन के पास भी है ये, वेन के पास भी सेम लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। बच्चे लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, दैट इज व्हाइट फाइबर, जिसके वजह से वो मजबूती देता है ब्लड वेसल को। ओके, ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाला है, ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिक। कंपैरेटिवली किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? वेन से कंपेयर कर रहे हैं। इज कंपैरेटिवली थिक एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। हमको पता है कि स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी है नेचर। ट्यूनिका इंटरना इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल, दैट इज एपिथेलियल सेल। ओके, ये था टीएस ऑफ आर्टरी। डायग्राम ड्रॉ करने भी आता है एग्जाम में। तो टीएस ऑफ आर्टरी shows the presence of 3 layers: tunica externa, tunica media, tunica interna. Okay, अब ये tunica externa is made up of what? Collagen fibers. Tunica media is made up of smooth muscles and elastic fibers. Whereas tunica interna is made up of endothelial cell. Okay, ये जो angular margin ये दिख रहा है, ये एंगुलर एंगल्स पे है ना, एंगुलर मार्जिन जो है अराउंड द ल्यूमेन शोज टेसेलेशन। ओके, द एंगुलर मार्जिन अराउंड द ल्यूमेन शोज व्हाट? टेसेलेशन। कोई मुझे मीनिंग बताओ टेसेलेशन का ढूंढ के। somebody tell me the meaning for tessellation. नहीं मिला? एक डिस्टिंक्ट टाइप का क्या है? ज्योमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है, डिजाइन है, एक अलग टाइप का डिजाइन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टेसेलेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द टीएस ऑफ वेन। टीएस ऑफ वेन में भी 3 ही लेयर्स है। गिव मी अ मिनट। TS of vein children, it also has 3 layers. One is tunica externa, वो भी कोलेजन फाइबर का बना है, ठीक है। tunica media is comparatively thin and made up of smooth muscles. tunica interna is made up of endothelial cells. यहाँ पे फर्क क्या है? ल्यूमेन का है। ओके, एनी डाउट विथ दिस? एक बार पढ़ लो दोनों ब्लड वेसल्स, टीएस ऑफ आर्टरी और टीएस ऑफ वेन। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगी डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो पहले का पॉइंट, इसमें जो पॉइंट है वो भी डाल के तुमको बताना है, यहाँ पे जो फर्क है दोनों। हमारे भाई चढ़ जाता था, डबल वैक्टर लेके आ गया, बहुत ही हार्ड। हाँ 7:30
जाएंगे क्या वेक्टर यश भालेकर, तन्वी कदम, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, गिरिजा तेली, ऋषिकेश, एक मैच नहीं हर मैच की कहानी थी ये हमने कम बैक किया था इनके अब 0 से 4 किया था तो आपको हाँ ये सारे बच्चे एक साथ से और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतने सारे बच्चे एक साथ से बात कर रहे हो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दो तो आप अच्छा पहले आ जाएगी और लाइक भी कर देना 200 की लाइक्स ओके थ्रिलिंग मैच के लिए थ्रिलिंग मैच मैम म्यूट करो सबको, उनको पढ़ने दिया है। मैंने पहले बोल दिया था क्योंकि मेरे को पता वहाँ यहाँ तक नीड आता था मैंने को बोला था दोनों तीनों एक पास मत खड़े हो नीचे जाओगे ऐसा ही हुआ वहाँ पे बंदा आ गया गाइस अपना मैंने तो अभी जस्ट म्यूट किया। उसने भी और मैंने भी भाग गया है रेड वाली बंदा भाई और नीड की बरसात हो गई पूछार हो गई है गाइस यहाँ पे ये इधर भाग रहे हैं और यहाँ पे रिया को हेड मार दिया वही रेड वाला बंदा देख रहे हो और यहाँ पे मैंने अरे भाई साहब क्या तो खेल रहा था भाई ये बंदा कसम से क्या तो खेल रहा था भाई चलो गाइस तो यहाँ पे ये वाला राउंड उज्जवल गाइस इन बंदों के खिलाफ उज्जवल स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। श्रेयस भालेकर, भाई लास्ट में बराबरी थी वो वाला गेम बिल्कुल 3-3 की बराबरी थी उज्जवल नाइटमेयर बन गया इनके लिए उसने 1v4 स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. You were able to hear ना when I taught you this blood vessels? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो? आधे से ज्यादा जन तो घर के बाहर है। Hardly there are 2 to 3 children those who are interested to study. हाँ, finished? Can anyone now tell me the difference between artery and vein? Yes, Pawar, I am unmuting you. Yes, Pawar, बोलोगे बेटा difference between artery and vein? Ma'am, from starting. हाँ, starting. Arteries. These are the type of blood vessels which carries oxygenated blood from the heart to different parts of the body, except the pulmonary artery. Veins. These are the type of blood vessels which carries deoxygenated blood from different parts of the body to heart. Except pulmonary veins, arteries. They are located deeply inside the body, whereas veins are they are located superficially in the body. Arteries, the blood flows with the high speed and great pressure, whereas veins, the blood in the veins flows with comparatively less pressure and less speed. Arteries, valves are absent in veins. Valves are present in arteries. The tunica externa or tunica is made up of collagen fibers. The tunica media is made up of यस पवार, तुम वो ट्यूनिका मीडिया का डिफरेंस नहीं बोल सकते हो। ट्यूनिका एक्सटर्ना तो कैपिलरी में भी प्रेजेंट, सॉरी वेन्स में भी प्रेजेंट है और आर्टरी, तो डिफरेंस कैसे हो गया वो? Tunica media in artery is thick, whereas tunica media in the veins are thin. कंपैरेटिवली थिन, कंपेयर कर रहे हो ना, डिफरेंस बता रहे हो, तो कंपैरेटिवली थिन। Yes, ma'am. कंटिन्यू। और कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है? ल्यूमेन का क्या है? व्हाट अबाउट द ल्यूमेन? Lumen is wide and narrow. तुमको टीएस में से 2 पॉइंट्स मिलेगा। एक तो ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी इज थिक, whereas the tunica media of veins are comparatively thin.
दूसरा क्या है, lumen is broad, sorry, lumen is narrow in case of arteries and in veins the lumen is narrow. समझ में आया? ये 2 पॉइंट सिर्फ तुमको ऐड करना था. नेक्स्ट ब्लड वेसल है कैपिलरी. कैपिलरी बच्चे लोग, कैपिलरी जो है इट इज द फाइन ब्लड वेसल, सबसे पतला है इसका वॉल. द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर फाइन. द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर व्हाट? फाइन. वॉल्स जो है कैपिलरीज का वो एकदम पतला है. ओके, द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर फाइन और थिन वॉल्ड. क्यों थिन वॉल्ड? क्योंकि उसमें ट्यूनिका मीडिया, सॉरी, ये जो कैपिलरीज होता है उसमें सारे 3 लेयर्स नहीं है. कैपिलरीज में सारे 3 लेयर्स नहीं है. इसमें एक ही लेयर है जो कि किसका बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, कैपिलरीज जो है उसमें एक ही लेयर है जो किसका बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम. उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना इंटरना ऐसा करके नहीं है, एक ही लेयर है. ओके, जो किसका बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, नाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज अंडर हाई प्रेशर. ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज में, ओके, अंडर हाई प्रेशर. So the walls of the capillaries bear what? Small pores through which the blood cells can escape by the process called as diaphoresis. कौन बोलेगा what do you mean by diaphoresis? Diaphoresis के बारे में कौन बोलेगा? What do you mean by diaphoresis? Diaphoresis का मतलब क्या है? The squeezing movement of WBCs through the walls of capillary is known as what? Diaphoresis. The squeezing movement of WBCs through the walls of capillary is known as what? Diaphoresis. ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे? कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या है? थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं. Because it shows the presence of only single layer of flat squamous epithelium. Okay? अब ये आता है पोर्टल वेन. ये क्या है? पोर्टल वेन. हम कौन सा पोर्टल वेन पढ़ रहे हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन. ठीक है, हमारे बॉडी में किधर प्रेजेंट है पोर्टल वेन? हेपेटिक पोर्टल वेन. जैसे कि लीवर में मिलता है हमको, लीवर में. ओके, तो लीवर में कौन सा वेन है? हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन. ओके, ये जो पर्टिकुलर हेपेटिक पोर्टल वेन है ये नॉर्मल वेन से अलग है. ध्यान से सुनना, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये नॉर्मल वेन से अलग है क्योंकि ये कैपिलरी में शुरू होता है एक ऑर्गन से और कैपिलरी में ही रहेगा एक बीच के ऑर्गन में. ठीक है, जैसे कैपिलरीज में शुरू हुआ, ये दिख रहा है तुमको? स्टमक, किडनी, ये सब कैपिलरीज है. ये सब कैपिलरीज है. कैपिलरीज से ये शुरू होता है. अब वो किधर पहुंचा? लीवर में पहुंचा. तो लीवर में जब पहुंचता है तो वहां पे भी तुमको क्या दिखेगा? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. क्या दिखेगा? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसको तुम हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हो. और फिर वहां से ब्लड लेके वो किधर जाता है? एक वेन में. वेन में जो किधर जाएगा? हार्ट में. बोलने का मतलब है ये शुरू कैपिलरी में हो रहा है. बीच का जो ऑर्गन है, यहाँ पे बीच का ऑर्गन कौन है? लीवर. उसमें भी कैपिलरी है और बाद में जाके वो वेन में खुलता है. बाद में जाके वो वेन में खुलेगा या वेन बनेगा. ठीक है, और फिर वो हार्ट की तरफ जाता है. तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा कम रहता है और वेल्स रहता है क्योंकि वेन्स बनने वाला ही आगे जाके वेन. ओके, और वो प्रिवेंट करेगा क्या? बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ऐसे पोर्टल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. पोर्टल सिस्टम जिसमें वेन स्टार्ट होता है और एंड कैपिलरीज में होता है. इट डिलीवर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर फॉर प्यूरिफिकेशन बिफोर इट इज कैरीड टू द हार्ट. ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सिस्टम ऑफ वेन्स है, लेकिन इसमें वेन्स के साथ क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज भी प्रेजेंट है. तो तुम इसको पोर्टल वीनस सिस्टम भी बोल सकते हो.
ये स्लाइड पढ़ लो, गिव मी अ मिनट, ये वाला स्लाइड पढ़ लो। Children, hepatic portal vein जो है, it is the largest vein in the abdominal cavity. Hepatic portal vein जो है ना बच्चे लोग, it is the largest vein in the abdominal cavity and it drains blood from the spleen and gastrointestinal tract of liver. ये किसमें से ब्लड लेता है? स्प्लीन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट और इंटेस्टाइन से निकालता है। और किधर जाके देता है ये ब्लड? लिवर में। हेपेटिक वेन जो है वो शुरू किधर हुआ है? जंक्शन ऑफ स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक। तो ब्लड जो है सिस्टिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक, गैस्ट्रिक वेन, वो सब जाके किधर खुलेगा? हेपेटिक वेन। गिव मी अ मिनट, इफ पॉसिबल आई कैन शो यू अ वीडियो which will be helpful for you to understand. Just give me a minute. Hepatic portal. If you can see the Google YouTube page, kindly tell me. Can you see the YouTube page, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमको सर्कुलेटरी सिस्टम का पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट का, वो कौन लेके जाता है? आर्टरी। और बॉडी, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? वेन। लेकिन आर्टरी पहला जाके ब्लड किसको दे रहा है? देखो, कैपिलरीज को, ठीक है। और पूरा ब्लड एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज सब कैपिलरी में। इसको हम कैपिलरी बेड बोलते हैं, क्योंकि ये देखो आर्टरीज के ब्रांचेस से और वेन्स के ब्रांचेस से बना है, ठीक है। तो हम इसको कैपिलरी बेड बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरी से किधर जाएगा? वेन्स में। और वेन्स किधर पहुंचाएगा? हार्ट में। तो बेसिकली मुझे क्या बोलना है? आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कैपिलरी बेड में, कैपिलरी बेड में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में, और वेन से हार्ट में। ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का जनरल रूल है। लेकिन टोटल वेनस सिस्टम जो है वो कैपिलरी बेड से थोड़ा, सॉरी, ये नॉर्मल चीज से थोड़ा अलग है। आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन और फिर हार्ट, ये नॉर्मल है। लेकिन टोटल वेनस सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आर्टरी से ब्लड कैपिलरी ब्लड में आया, दिख रहा है ये नीचे। लेकिन ये एक कैपिलरी बेड से दूसरे कैपिलरी बेड में जा रहा है, ये डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रहा है। आर्टरी से ब्लड आया कैपिलरी बेड में और फिर वो दूसरे कैपिलरी बेड में जा रहा है। फिर एक दूसरा वेन है और वो वेन जाके किसको मिलेगा? हार्ट वाले वेन को। समझा क्या फर्क क्या है वीनस सिस्टम का, पोर्टल सिस्टम का फर्क समझा? दो कैपिलरी बेड है और ब्लड डायरेक्टली क्या बोलते हैं उसको, इंफीरियर वीना कवा में नहीं जा रहा है। वो एक अलग वेन बनाएगा और फिर वो वेन जाके किसको ज्वाइन करेगा? इंफीरियर वीना कवा को। तुम मुझे बोलोगे ये वाला वेन कौन सा? अगर मैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एग्जांपल लेती हूँ, ये कौन सा वेन है जहां मैं एरो घुमा रही हूँ? कौन सा वेन है? अरे सुन रहे हो?
लाइको pulmonary vein, बेटा पल्मोनरी वेन तो हार्ट से लंग्स में जाता है। पल्मोनरी वेन हार्ट से लंग्स में जाता है ना। मैंने अभी तुमको हेपेटिक वेनस सिस्टम सिखाया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या बोला था? सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पेट से, किडनी से, इंटेस्टाइन से कैपिलरी लेके आया, और वो कैपिलरी बेड, एक कैपिलरी बेड दूसरे कैपिलरी बेड को मिलके वो किधर जाता है? किधर जाता है? मैंने भी कहा अनपढ़ों को ज्यादा ज्ञान देने का सोच लिया। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ये वेन किसका है? लीवर का है, हेपेटिक वेन है ये हेपेटिक वेन अभी जाके किसको ज्वाइन करेगा? इंटीरियर वीना कवा को या पोस्ट केबल को, और वो हार्ट में जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है वेन। आधे तो सारे टीवी के सामने बैठे, आधे घर के बाहर है, आधे जो बैठे वो यूट्यूब देख रहे, तो कहां से समझ में आएगा? एग्जाम होगा ना सच्ची में, कस के तुम लोगों की ना वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, मार्किंग 60 के ऊपर परसेंटेज देना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तब समझेगा पढ़ाई क्या है। देखो ये पूरा का पूरा कैपिलरी देखो कहां से आ रहा है, ये किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, और ये एक कैपिलरी बेड है, वो दूसरा कैपिलरी बेड किधर बनाया है? लिवर के अंदर। अब लिवर से एक बड़ा वेन निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक वेन। लिवर का इसके लिए हेपेटिक वेन। ये दूसरा एग्जाम्पल है। हमारे पास और एक पोर्टल सिस्टम है जो ब्रेन में, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सीखना। अभी तो पोर्टल ही नहीं समझ रहा है। दिख रहा है? वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज कहां से आ रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन से। स्टमक और इंटेस्टाइन ज्यादा करके वहीं से आता है। स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये सब जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है वीनस सिस्टम, कैपिलरी बेड के फॉर्म में। अब एक दूसरा कैपिलरी बेड बन गया किधर पे? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर, अब लिवर के अंदर जो कैपिलरी बेड है उसका काम क्या है? लिवर का वो ब्लड के अंदर जो भी कचरा है निकालने का काम है। अब ये कैपिलरी बेड आगे जाके क्या बन जाता है? वेन मिलके क्या बनते हैं? हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन मतलब, बोलने का मतलब ये है, जीआई ट्रैक्ट से जो ब्लड वेसल है वो डायरेक्ट जाके हार्ट में नहीं खुल रहा है, बीच में एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गन है जिसको हम लिवर बोल रहे हैं, क्योंकि ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। लिवर तुम इसको रिले के जैसा सोच सकते हो। पहला बंदा जो है वो कौन है? पूरा वेन जो जीआई ट्रैक्ट में आता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, यहाँ सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पहला बंदा है। उससे जाके डंडी किसको दिया? लिवर को। लिवर इंटरमीडिएटरी है, तो लिवर में जब ब्लड पहुंच रहा है वो क्या करेगा? वो सब न्यूट्रिएंट्स को अलग करेगा, कचरे को हटाएगा, वो सब काम किसका है? लिवर का है। अब लिवर से वो दूसरा बंदा डंडा किसको जाके देगा? किसको देगा जाके? लिवर अगर दूसरा बंदा है तो उसको किसको जाके देना है डंडा? हेपेटिक वेन। हाँ, हेपेटिक वेन किधर जाके खुलेगा? लिवर के ही वेन को हेपेटिक वेन बोल रहे बेटा। वो किधर जाएगा? अभी
उसको किसके पास जाना है? इंफीरियर विना हाँ, इंफीरियर वेना केवा किधर खुलेगा अभी? हार्ट। हाँ, खाना खाने के बाद, खाना खाया है ना, जो रोटी चावल, तो उसमें ग्लूकोज है, तो पेट से जो खून जा रहा है लिवर के पास, तो उस खून में क्या है? ग्लूकोज है। तो लिवर क्या करेगा? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में, और स्टोर करता है अपने पास। अगर कोई फास्टिंग कर रहा है, किसी ने व्रत रखा है, तो ग्लाइकोजन को दोबारा से क्या करेगा? लिवर ग्लूकोज में बदल देगा। ये लिवर का फंक्शन बता रहे हैं हम लोग, लिवर क्या क्या करता है। हम जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, उसको तोड़ने का काम, उसके अंदर जो केमिकल्स है उसको तोड़ने का काम कौन करता है? लिवर। इसके लिए बोलते हैं फालतू में दवा मत खाओ, क्योंकि लिवर पे स्ट्रेन आएगा, फालतू में दवा खाएंगे, उस बेचारे को तो काम करना है। जिसके वजह से जो लोग फालतू की दवाएं ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, उनका लिवर डैमेज होने का चांसेस ज्यादा है। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवाई नहीं खाने का। लेकिन इंडिया में लोग, हर कोई डॉक्टर है, वो बेचारा एमबीबीएस वाले डॉक्टर से ज्यादा भरोसा तुम लोगों केमिस्ट पे करते। मेरा सर दुख रहा है, कौन सा दवा? वो उठा के दे देगा दवा, उसको क्या करने का है? कॉम्बीफ्लेम सबसे ज्यादा हमारे लिवर को डैमेज करता है। ब्रूफेन हमारी किडनी को डैमेज करता है। इसके लिए ये सारी दवाइयां, जब भी हाथ पैर दुख रहा है तो फालतू के दवाई नहीं खाने के। सर्दी जुकाम है तो पहले घर के उपचार करो, आयुर्वेदिक उपचार, दवाई नहीं खाने के। आयुर्वेदिक उपचार मतलब क्या है? अजवाइन का जो भी सीड्स है, अजवाइन के क्या बोलते हैं अजवाइन क्या, ओवा 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 खा लो, सर्दी चली जाती है। या फिर काली मिर्च का काढ़ा पियो, सर्दी खांसी दोनों चली जाती है। दवाई जल्दी नहीं खाने का, क्योंकि ये सारे दवाई के केमिकल्स हमारे लिवर और किडनी को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब समझा पोर्टल सिस्टम? हमारे जीआई ट्रैक से सारा ब्लड किधर जाएगा? जीआई ट्रैक से सारा ब्लड किधर जाएगा? अरे बच्चे लोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ब्लड किधर जाएगा? मिस चौधरी, आज तुम क्या कर रहे हो? बिरयानी पका रहे हो? हाँ नो मैम। हाँ, तो ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? स्टमक से, इंटेस्टाइन से, पैनक्रियास से, स्प्लीन से, सारे ब्लड किधर जाएंगे बेटा? मैम लिवर में। डायरेक्टली कैपिलरी बेड में। हाँ, कैपिलरी ब्लड बेड में। हाँ, अब दूसरा कैपिलरी ब्लड बेड किधर है? दूसरा कैपिलरी बेड किधर है? ये सब ब्लड जो है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर,
सॉरी क्या है, स्प्लीन, पैनक्रिया, ये सब ब्लड कौन ला रहा है? कैपिलरी, कैपिलरी ला रहे हैं, लेकिन दूसरा कैपिलरी बेड किधर है? ये एक कैपिलरी बेड हो गया ना, ये एक कैपिलरी बेड है, दूसरा कैपिलरी बेड किधर है बच्चे लोग? किधर है आहना? हाँ, वो मेरी छठी की बच्ची भी बोल रही है आंसर। लिवर में किधर है दूसरा कैपिलरी बेड? अरे अभी तो मुंह खोल के बोलो, किधर है दूसरा कैपिलरी? लिवर में। और लिवर से ये कैपिलरी सारे ज्वाइन होके क्या बन के बाहर निकलते हैं? वेन। बहुत वेन है ना, तो हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन किसको जाके ज्वाइन करेगा? इंफीरियर वेना कहा। और इंफीरियर वेना कहा किधर खुलेगा? हार्ट में। हाँ, अभी पढ़ो ये और देखो समझ में भी आ रहा है क्या जो मैंने भाषण दिया है? समझ में आया ये क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन लार्जेस्ट वेन है। इस वेन में ब्लड कहां से आ रहा है? स्प्लीन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और लिवर। हेपेटिक वेन किधर शुरू होता है? स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक। एक मिनट, दिख रहा है ये हेपेटिक वेन है, आ गया। और ये कहां से शुरू हो रहा है? इसको सब बोल रहे हैं वो स्प्लीनिक वेन, मेसेंट्रिक, ठीक है, ये सब मिलके क्या शुरू होता है? हेपेटिक वेन। This is about the capillary which I have already explained. Moving to the next, electrocardiogram, जिसको हम ECG या EKG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECG या EKG। हो सब जन कि मैं ऐसे ही गला फाड़ू? सुनाई भी दे रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ। अब ये पढ़ के किसी कार्डियक पेशेंट का ECG पढ़ने मत जाना, ठीक है? ये ECG जो है बच्चे लोग, एक मशीन है जो वो काटा, एक मिनट, ये ECG जो है बच्चे लोग, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका कार्डियक साइकिल का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्डियक साइकिल का, ओके। इसको ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेरिएशन डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग देयर प्रोपागेशन थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट। व्हाट इज ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है, ग्राफ पेपर पे आता है, of electrical variation detected at the surface of body during their propagation through the wall of heart. अब इसमें तुम देखोगे तो तुमको अलग अलग वेव्स दिखेंगे। P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, ये नॉर्मल ECG है, ये नॉर्मल बंदे का ECG है, जिसका हार्ट नॉर्मल है उनका ECG है, ठीक है। तो ECG में तो हम 4 वेव के बारे में पढ़ते हैं। P वेव क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। SA नोड जब वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, SA नोड वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, SA नोड जब वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, ओके। और ये जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, तो एट्रिया क्या करेगा? एट्रिया विल अंडरगो व्हाट? एट्रिया किसमें जाएगा? SA नोड वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा, तो एट्रिया किसमें जाएगा बच्चे लोग?
हे भगवान, ऐसे नोड वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है बच्चे लोग, तो एट्रिया किस में जाएगा? Contraction. हाँ, जोर से बोलो। Contraction. कॉन्ट्रैक्शन का साइंटिफिक टर्म क्या है? सिस्टोल। सिस्टोल। तो उस टाइम पे उस पेपर पे ये पी वेव आएगा, पी वेव दिख रहा है, ये वेव पी वेव आएगा, जो कि ब्लंट है, एकदम ऊंचा नहीं है, इसके जैसा ऊंचा नहीं है, ना टी वेव के जैसा, ठीक है, वो थोड़ा सा दबा हुआ वेव है, तो पी वेव दिखाई देगा। ओके, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन। When the SA node generates the waves of contraction, okay, a small upward deflection can be seen on the graph paper, on the graphical representation, that is a P wave. Okay, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। देखो, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में जाता है या सिस्टोल में जाता है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब आता है QRS कॉम्प्लेक्स। अभी ऐसे नोड से वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसको दिया जाएगा? ऐसे नोड से वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसको देंगे? AV node. AV node. एवी नोड से किधर जाएगा? Bundles of Bundle of बंडल ऑफ Helium. से किधर जाएगा? Purkinje fiber. Purkinje fiber है। उस टाइम पे ग्राफ पेपर पे क्या आएगा? QRS कॉम्प्लेक्स। उस टाइम पे ग्राफ पेपर पे क्या आएगा? QRS कॉम्प्लेक्स। उस टाइम पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स के टाइम पे क्या होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं। टी वेव, टी वेव कब आता है बच्चे लोग? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल्स क्या हो गए? रिलैक्स। वेंट्रिकल्स क्या हो गए? रिलैक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, ओके, ये सारे क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर एक प्रिंट आउट में से बाहर आएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं ये पढ़ने के लिए, उसको ECG मशीन बोला जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट है ना, डिटेक्ट कर सकता है और एम्पलीफाई कर सकता है सिग्नल्स को। भगवान ना करे किसी को इसकी जरूरत पड़े या किसी को ये देखना पड़े, जब तक तुम लोग नीट क्लियर करके डॉक्टर नहीं बनते हो। ये जो पर्टिकुलर ECG अगर किसी ने नहीं देखा है तो लेट मी शो यू अ वीडियो, जहाँ पे हम लीड्स यूज करते हैं। एक जेल होता है जिसको बॉडी पे लगाया जाता है, एक जेल होता है बच्चे लोग जिसको बॉडी पे लगाया जाता है, और उस जेल के ऊपर ना ऐसे कुछ बटन जैसा चिपकाते हैं। तो वो जेल का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पढ़ने में मदद करता है। गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय YouTube पेज, व्हेन यू कैन सी काइंडली लेट मी नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है? No, ma'am. Correct. अभी Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो जो पॉइंट्स येलो में दिखा रहे हैं ना बच्चे लोग, वहां पे हम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। बेसिकली 4 इलेक्ट्रोड जो है वो लिम्ब पे रखते हैं, हाथ पैर पे, ठीक है, 2 आर्म्स पे रखते हैं और 2 पैर पे। तो 6 इलेक्ट्रोड चेस्ट पे रहता है, 6 इलेक्ट्रोड चेस्ट पे, 2 लिम्स पे, सॉरी 4 लिम्स पे, उसमें से 2 पैर पे और 2 क्या है, हाथ पे है। ओके, कोई 12 यूज करते हैं, कोई 6 यूज करते हैं, डिपेंड करता है। और वो वायर से कनेक्टेड होता है मशीन से, वायर से क्या रहता है? कनेक्टेड होता है मशीन से।
12 लीड्स है ईसीजी पे, जो 12 इलेक्ट्रिकल व्यूज देगा हमारे हार्ट को डिफरेंट एंगल से। दिस इज शोइंग द व्यू ऑफ व्हाट 12 लीड्स एट डिफरेंट एंगल्स। दस इलेक्ट्रोड वो बॉडी पे लगा रहे हैं, ठीक है। वो जो भी पॉइंट्स अभी दिख रहा है ना वीडियो पे, वो ध्यान से देखो। देखो 6 छाती पे है और 2 उसके कंधे पे बोल सकते हो। छह लिम्स हाथ पैर पे है और 6 लिम्स किधर है, छाती पे है। राइट लेग पे जो इलेक्ट्रोड है वो अर्थ इलेक्ट्रोड है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज हमको पता है कि 2 पोल्स ही रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ईसीजी मशीन जो है वो नेगेटिव वाले को क्या यूज करता है, एज अ 0 रेफरेंस। ये सब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बस मुझे तुमको ये दिखाना है कि ये किया कैसे जा रहा है और दिखता कैसा है। पॉजिटिव वाला जो है ना पोल, इट्स द पॉइंट ऑफ व्यू, देखने वाला, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट, ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दिख रहा है कि किस तरह से ये लीड्स को यूज किया जा रहा है। ओके, एक 0 रेफरेंस है, नेगेटिव 0 रेफरेंस है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ क्या है, व्यू है। और इन दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो हमको वहां से लाइन ऑफ साइट मिलता है। तो इस तरह से हार्ट को तीनों तरीके से देखा जा रहा है, हार्ट के एक्टिविटी को। समझा ईसीजी क्या है और लिम्स किस लिए यूज किया जा रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या रिकॉर्डिंग है किसका, इलेक्ट्रिकल वेरिएशन का, जो डिटेक्ट होता है सरफेस ऑफ द बॉडी। किसके मदद से यूज बनाया जा रहा है ये ईसीजी मशीन, ठीक है। और ये ईसीजी मशीन कनेक्टेड होता है वायर से, और ये वायर किससे कनेक्टेड है, लीड। कितना लीड है, छाती पे कितना लीड है, 6 और हाथ पैर पे सब मिला के 4 नॉर्मली 12 होता है, सॉरी 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 4 जो है वो लिम्स पे है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रोड, बच्चे लोग लिम्स पे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 4 इलेक्ट्रोड लिम्स पे है, 2 आर्म पे और 2 पैर पे, और बाकी के 6 की तरह छाती पे है, ठीक है। इसमें एसए नोड जब बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा
और एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो कौन सा वेव तैयार होता है? P wave. P wave. P wave, ठीक है। और जब वो एवी नोड के पास जाएगा वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बंडल ऑफ हिल्स और वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में, तो कौन सा वेव तैयार होएगा? QRS. QRS. तो मेरे को बताओ पी वेव के टाइम पे एट्रिया किसमें है? डिपोलराइजेशन की रिपोलराइजेशन? Repolarization. 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 पी वेव, पी फॉर पैरेट, पी वेव के टाइम पे एट्रिया डिपोलराइजेशन पे। क्यूआरएस के टाइम पे कौन डिपोलराइजेशन पे? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कौन इस पे है डिपोलराइजेशन पे? Contraction. वेंट्रिकल। अगर एवी नोड से वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन बंडल ऑफ हिल्स और पर्किंसंस में जा रहा है तो कौन डिपोलराइजेशन में रहेगा? क्यूआरएस ना, वेंट्रिकल। अभी टी वेव के टाइम पे क्या हो रहा है? रिपोलराइजेशन, जो कि क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल। ये नॉर्मल ईसीजी है बच्चे लोग। मैंने तुमको पहले ही बोला ये कौन सा ईसीजी है? नॉर्मल बंदे का ईसीजी। डॉक्टर को कैसे समझ में आ रहा है? तुम यहाँ देख रहे हो टाइम है, ये जो पर्टिकुलर चीज हम ग्राफिकल रिकॉर्डिंग पे ले रहे हैं ये टाइम है। किसी के भी एसए नोड में दिक्कत है तो वो 0.16 सेकेंड से ज्यादा होगा, या तो ये वेव है ना, ये वेव की टिप वो फ्लैट होगी या ऊंची होगी, जिससे डॉक्टर अलग अलग बीमारी का पता कर सकता है। ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर बराबर से वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंडक्टिंग सिस्टम के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो ये क्यूआरएस का टाइमिंग डिले हो जाएगा। ओके। और टी वेव का भी सेम है। तो ये टाइम के हिसाब से और इस पैटर्न के हिसाब से मालूम पड़ता है डॉक्टर को कि कौन सा वाला क्या है हार्ट का फेज में प्रॉब्लम है और कौन सा सिस्टम जो है कंडक्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। एक बार ये यहाँ से एक बार पढ़ लो ध्यान से। मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम बेटा तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है यश। मैम वो डिफेक्ट एक बार कैसे पता चलते बेटा उसका टाइमिंग, ये जो टाइम रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा या कम, या तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये पी का चोटी या क्यूआरएस नीचे रहेगा ज्यादा, या ये आर नीचे रहेगा, या टी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उससे पता चलता है कि कौन सा क्या बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम या हार्ट के मसल्स को क्या तकलीफ है। अगर ये लाइन फ्लैट हो जाएगी तो ईसीजी पे लाइन फ्लैट रहेगा तो वो मर गया। मर गया। हाँ चलो मान। Now moving to the next answer, that is pulse. रेडी हो पल्स के लिए? तुम्हारा चॉकलेट नहीं। बच्चों जब ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में से जब ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है आर्टरी में। ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है ना आर्टरीज में। ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है आर्टरीज में, जिसके वजह से वो प्रेशर मारेगा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल पे, आर्टरी पे। उसी प्रेशर को जब पढ़ते हैं तो हम उसको पल्स बोलते हैं। The series of pressure waves that travel through the arteries due to the ventricular systole.
लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत फोर्स के साथ आर्टरी में आता है, तो वो ब्लड प्रेशर हम रीड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पल्स। पल्स रेट और हार्ट रेट इक्वल होता है। नॉर्मल बंदे का क्या है पल्स रेट? नॉर्मल बंदे का क्या है पल्स रेट? हेलो, 72 to 80। पैदा हुए बच्चे का डबल कर दो, छोटे बच्चों का पल्स रेट हमसे डबल रहता है। हाँ 140, क्योंकि उन लोग एक्टिव रहते हैं ना इसके लिए, और उनको ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है इसके लिए, ठीक है। अब पल्स रेट जो है इट मीन ऑलवेज इक्वल टू हार्ट रेट। नॉर्मली ये डायग्राम को देखो और मेरे को बोलो डॉक्टर कौन सा ब्लड वेसल रीड करता है कॉमनली फॉर रीडिंग द पल्स। डायग्राम को देखो, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी के अलावा भी देखो कहाँ से निकल सकता है पल्स? टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, ठीक है। ये सब अलग अलग क्या है, पल्स पॉइंट्स है। ये सब क्या है, पल्स पॉइंट्स है। जल्दी जल्दी इसमें से 4 आर्टरीज का नाम याद करना जो पल्स पॉइंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। बच्चे लोग, पल्स रेट अगर 60 बीट से कम है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। If the pulse rate is less than 60 beats per minute, then the condition is known as bradycardia. If the pulse rate is more than 100 beats per minute, then it is known as tachycardia. Bradycardia, hello? Bradycardia, pulse rate is less than 60 beats per minute. Tachycardia, pulse rate is more than 100 beats per minute. ये स्लाइड पढ़ो, मैं पूछूंगी व्हाट इज पल्स, व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, व्हाट इज टैकीकार्डिया, एंड नेम द डिफरेंट पल्स पॉइंट। What is pulse? Anyone can kindly and you can answer. What is pulse? Hello? it is a series of pressure waves that travel through the arteries due to ventricular systole. Very good, child. Thank you for responding. Name any 4 pulse point in our body. Radial artery, carotid artery, temporal artery, facial artery. ये तो 2 हो गया बेटा, और 2 चाहिए ना। Radial artery and carotid artery. हाँ, what is bradycardia? Pulse rate less than 60 beats Per minute, okay, per minute. Tachycardia, pulse More than rate 100. more than 100 beats. 100 beats per minute. अब ब्लड प्रेशर, हम बोलते हैं ना तुमको कितना ब्लड प्रेशर है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या है, तो हम बोलते हैं 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। कोई लोग बात करते हैं तब बोलते हैं हमको तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर इंसान जिंदा है तो उसको ब्लड प्रेशर होगा, और उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80। 120 जो है वो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम निकलता है। 120 जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं। डायस्टोलिक 80 जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे है, तो ब्लड प्रेशर जब हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे रीड करते हैं उसको हम 80 बोलते हैं। इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड बाय द वॉल्स ऑफ द आर्टरी बाय द ब्लड। ये प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है बच्चे लोग, ब्लड एक्सर्ट कर रहा है। कब एक्सर्ट कर रहा है, सॉरी, और किस पे एक्सर्ट कर रहा है, वॉल्स ऑफ आर्टरी पे। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर वॉल्स ऑफ आर्टरी पे एक्सर्ट होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80।
120 refers to systolic blood pressure, which is during the ventricular systole. 80 mmHg is the diastolic blood pressure, जो ventricular diastole पे है. This is how the instrument looks. ये डॉक्टर्स हमारा ब्लड प्रेशर लेते तो एक इंस्ट्रूमेंट बांधते हैं ना, उसका नाम है स्पाइक्मोमैनोमीटर. ब्लड प्रेशर को रीड करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पाइक्मोमैनोमीटर. स्पाइक्मोमैनोमीटर. ठीक है. अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? पल्स प्रेशर. द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज व्हाट? पल्स प्रेशर. 120 माइनस 80 कितना मिलेगा? 40. तो वो क्या है? पल्स प्रेशर है. जो साउंड हमको सुनाई देता है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के टाइम पे, वो डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है ना जो साउंड, ठीक है, वो हाथ पे रख के सुनता है ना, रेडियल ब्रैकियल आर्टरी पे रख के सुनता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोस्कोप साउंड. कोरोस्कोप साउंड. और ब्लड प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. हमारा ब्लड कितना गाढ़ा है, विस्कोसिटी, हमारा ब्लड कितना गाढ़ा है, उसके बेसिस पे हमारा ब्लड प्रेशर आएगा. अगर बंदे को हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम है, तो हाइपोटेंशन जो कि नॉर्मली 90/60 रहता है. हाइपरटेंशन में इट विल बी मोर देन 140. 140/90. तो रीड दिस स्लाइड केयरफुली, ध्यान से पढ़ो यहाँ से और समझो क्या बोला है. Okay, what is the normal blood pressure in an adult human being? 120/60 120 by 18 mmHg. हाँ, 120 क्या रिप्रेजेंट करता है? 120 mmHg क्या रिप्रेजेंट करता है? What does 120 mm represent? BP, normal BP. Pressure. कौन बच्चे लोग हैं? सिस्टोलिक प्रेशर. 120 क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो किसके टाइम पे लिया जा रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब बोलो 80 mmHg क्या रिप्रेजेंट करेगा? Diastolic pressure. And it is during what? Atrial diastole. कौन रिलैक्स हो रहा है? कौन रिलैक्स हो रहा है? एट्रिया की वेंट्रिकल? Ventricle. तो बोलो ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल. 80 mmHg represents diastolic blood pressure during ventricular diastole. The sound that we hear during the time of this blood pressure is known as. Corecox. And name the instrument used to read the blood pressure. Sphygmomanometer. The difference between the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure is known as. Pulse pressure. Blood pressure is
is directly proportional to the Viscosity of blood. factors that affect BP, कार्डियक आउटपुट. हमारा हार्ट ही बराबर काम नहीं कर रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा. पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट? 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट? 5 लीटर. 5 लीटर. हाँ, तो अगर वो कम या ज्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर में पता चल जाएगा. ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड गाढ़ा है क्या? ब्लड गाढ़ा कब हो जाएगा? जब सोडियम सॉल्ट ज्यादा है, इसके लिए नमक कम खाने का बोलते हैं. वीनस रिटर्न, एज, जेंडर, सेक्स, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशन, इससे सब हमारे ब्लड प्रेशर पे असर होता है. ब्लड प्रेशर एज के साथ बढ़ जाता है बच्चे लोग, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, लूजेस इट्स इलास्टिसिटी. ब्लड प्रेशर एज के साथ बढ़ जाता है क्योंकि एज के साथ हमारे ब्लड वेसल्स का इलास्टिसिटी लूज होगा. ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड प्रेशर कैन बी अफेक्टेड बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन. फीमेल्स का ब्लड प्रेशर जनरली थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स. अब वीनस रिटर्न क्या है? Amount of blood brought to the heart by the veins per unit time is called venous return. कितना ब्लड वेन्स लेके आ रहा है हार्ट में 1 मिनट में, उसको हम क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न. पेरिफेरल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल. और डायमीटर जो है आर्टेरियोल्स का या कैपिलरीज का, वो किसके इफेक्ट में है? वैसोकंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्टर जैसे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन है. ओके, इसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है. एक बार रीड करो यहाँ से स्लाइड और समझो, सिर्फ रीड नहीं करना है मंद लोग के जैसा. Students, there is very less now left in this chapter, but मैं आज नहीं लूंगी ये. अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. तो तुम लोग आज जितना पढ़ाया है उतना पढ़ना ध्यान से, ताकि अगले क्लास में जवाब दे सको. ठीक है? For today I am closing the class. Have a great Sunday. May God bless you. Take care. Stay home. Stay safe.